Now talking about some of the packing system for a crystal. We will discuss here close packing structure in one dimension, two dimension, and finally three dimension. Because the solid we used to see around us in crystalline form, in all these solid, the constituent particles are closely packed with as much minimum space as possible. So these close packing would be discussed in this video, and we will consider the particle over here, the hard sphere. While discussing about any of the packing, we have to consider that all of the particle are hard spheres, and their arrangement in one dimension, and then again two dimensional arrangement, and then a three dimensional arrangement leading to the structure of the whole crystal. And we will go through the stepwise discussion of this packing. So starting our discussion with close packed structure. While discussing about this close packing, we have to keep one thing in mind, that we have considered the constituent particle as hard sphere and identical. हमें यहाँ पर जो भी क्लोज पैकिंग डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करते वक्त हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, that we are considering the particle as hard sphere, and the second one, that we are considering them as identical. Now the first step of the packing is the one dimensional packing. So close packing in one dimension. One dimensional packing is very simple. In this we will put one particle adjacent to another by touching one another. We will simply arrange the particle in a row, lengthwise or longitudinally or horizontally. So it will look like this. This is one particle, another particle is placed adjacent to it. In the same way we can put as many particles as we can. This represents one dimensional packing. Particles are placed adjacent to each other. Adjacent to each other. And in this case, the particles are arranged by touching one another. So if we take any of the particle, that particular particle would be found in direct contact with the two other particles. So the next point which we have to keep in mind is that in one dimensional close packing, any particle is in direct touch with two other particles. As we can see over here, if we consider this one, so this particle is in direct contact with this and with this particle. So in same way, if we take the example of this one, this particle is also in direct contact with the two other particle. So in one dimensional close packing, the number of neighbor of a particle is 2, or we can see that number of neighbors is equal to 2, and number of neighbors, close neighbors, are also known as coordination number.
This number of close neighbors are known as coordination number. So here coordination number is 2 in case of one dimensional close packing. Let's once again see the review of it. We are discussing over here close packed structure. For discussing this, we are considering particle as hard sphere and identical. क्लोज पैकिंग के केस में हमें ये मानकर चलना है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हार्ड स्फेयर्स हैं एंड वो पार्टिकल आइडेंटिकल हैं. अब ये जो हमने स्टडी करना है अरेंजमेंट, वो फर्स्टली वन डायमेंशनल, फिर टू डायमेंशनल, अगेन फिर थ्री डायमेंशनल. तो फर्स्टली हम लोग वन डायमेंशनल की बात करें तो इसमें पार्टिकल कुछ इस फैशन में अरेंज होंगे. एक दूसरे के एडजेसेंट, एक के साइड एक पार्टिकल को रखेंगे. इसे हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी मैनर में अरेंज कर सकते हैं. और इस वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमें साफ दिखता है कि कोई एक पार्टिकल डायरेक्टली दो पार्टिकल के टच में है, यानी किसी एक पार्टिकल के लिए दो नेबरिंग पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. So here we have written number of neighbors is equal to 2 and the number of neighboring particle for any given particle is known as coordination number. किसी भी एक पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने पार्टिकल आएंगे वो क्या coordination number कहलाएंगे. And in the case of one dimensional close packing, coordination number is 2. We can also see that for this particle दो इसके नेबर्स हैं, सो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया. तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे, 2 लेंगे. एंड मूविंग फर्दर वी विल गो थ्रू द डायमेंशन टू डायमेंशनल पैकिंग. वन डायमेंशनल पैकिंग की जो भी बातें थी हमने यहाँ डिस्कस कर ली. अब हम लोग टू डायमेंशनल पैकिंग की ओर आते हैं. सो इन द केस ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग देयर आर टू केसेस. सो लेट see carefully what are the two cases. Second one, two dimensional close packing. In the case of two dimensional close packing, the first case is like this. हम लोग अगर इस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के पहले वाले केस को देखें तो हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. तो फर्स्ट रो के जो भी पार्टिकल्स हैं उसके जस्ट नीचे सेकेंड रो के पार्टिकल को प्लेस किया गया है. उसी प्रकार से सेकेंड रो के जो भी पार्टिकल हैं उसके जस्ट नीचे थर्ड रो के पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं. तो ये एक पॉसिबिलिटी है टू डायमेंशनल पैकिंग की, जिसमें क्या होगा कि हमने पहला रो जो तैयार किया जस्ट आइडेंटिकल उसी के जैसा दूसरा तीसरा जितने भी हमें रोज बनाने हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही रोज तैयार करते जाएंगे. तो अगर इस रो को हम लोग कहते हैं ए टाइप, ये ए टाइप का रो है, लेट से नाम दे दिया गया ए टाइप. तो दूसरा रो भी एकदम सेम आइडेंटिकल उसी जैसा दिख रहा है तो इसे भी हम लोग कहेंगे कि ये भी ए टाइप है. वैसे ही थर्ड रो ये भी क्या है, ए टाइप. यानी सारे रोज जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं तो इसलिए सब ये ए टाइप के अंदर आएगा. इसलिए हम लोग ये अरेंजमेंट दिख रहा है इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं. इस अरेंजमेंट को हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ए टाइप अरेंजमेंट है ये. इसलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे रोज जो हैं जो एक के बिलो एक प्लेस किए गए हैं वो सब एक जैसे हैं, इसलिए हम लोग इन्हें ए टाइप अरेंजमेंट दे रहे हैं. तो ए यहाँ पे कुछ इसी चीज को डिनोट नहीं कर रहा, सिंपली ए हमने अगर एक फर्स्ट रो को माना तो सेकेंड रो भी उसी जैसे इसलिए उसको भी ए कह दिया. उसने फिर थर्ड रो पे आते रहे तो वो भी उसी जैसा दिखता है तो इसलिए उसको ए नाम दे दिया गया, इसलिए इसे ए टाइप अरेंजमेंट कह रहे हैं. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर जो हमें यहाँ देखना है वो आते हैं. सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल को कंसिडर करते हैं यहाँ पर. तो इस पार्टिकल के नेबरिंग पार्टिकल कितने होंगे जो इसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं, ये एंड ये और ये वो चार पार्टिकल हैं जो इस पार्टिकल को घेरे हुए हैं. तो हमने क्या देखा कि इस पार्टिकल के
जस्ट एडजेसेंट पार्टिकल जो है, जो इसके डायरेक्ट टच में है, इस पार्टिकल के एडजेसेंट जो डायरेक्टली से टच में है वो कौन है, इसके ऊपर, इसके नीचे, राइट एंड लेफ्ट, है ना कि नहीं। तो इस सिचुएशन में हम अगर किसी एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं तो वो एक पार्टिकल के जस्ट नेबरिंग पार्टिकल कितनी है, तो एक उसके जस्ट अबव, एक उसके जस्ट बिलो, एक उसके राइट हैंड साइड और एक उसके लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो पार्टिकल है ये डायरेक्टली चार पार्टिकल के कांटेक्ट में है, और इसलिए इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 4 है, क्योंकि किसी भी एक पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो 4 हैं, तो इसलिए इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पर पार्टिकल इस पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनके सेंटर को आपस में कनेक्ट करें, सेंटर को आपस में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो सेंटर को आपस में कनेक्ट करने पर, ज्वाइन करने पर हमें एक स्क्वायर ऑब्टेन होकर मिलेगा, इसलिए इस पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग का भी नाम दिया जाता है। इस पैकिंग को हम लोग एक और नेम देंगे एंड दैट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि किसी भी एक पार्टिकल को अगर हमने कंसिडर किया तो उसके जो चार नेबरिंग पार्टिकल्स थे उनके सेंटर को आपस में कनेक्ट करने पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम दे रहे हैं। अब आगे बात बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से जो बातें हमने पीछे की इसको एक बार हम रिकॉल कर लें। तो हमने क्या देखा कि ईच स्फेयर इन दिस पैकिंग is in direct contact with the 4 other sphere, यानी in case of two dimensional close packing, in case of two dimensional close packing, वो भी कौन सा, ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस, ये केस की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के हम लोग दो केस देखने वाले हैं। तो इन दिस केस दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के जो फर्स्ट केस है जिसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, for this case the coordination number is equal to 4. It means the number of neighbors for each sphere is equal to 4. That immediate neighbor is equal to 4. That we are telling the coordination number over here is 4. And this is the discussion of two dimensional close packing. And under this two dimensional close packing we have discussed the first case, that is the square close packing. Now we are going towards the second case of this two dimensional close packing. In this case the arrangement varies from the first one. Let's see how. What we are observing in this packing is what, suppose this is the first row and it is represented as A. So the second row is not just like as the first one. What is the difference? In the first row, the gap between the two sphere is occupied by the particle of the second row. Again, the two sphere has some gap in between them which is occupied by the sphere of the second row. Again, these two sphere has some gap in between them and it is occupied by the sphere in the second row. In same manner, for the third row, the space occupied by the gap is of the particle from the third row. So if this row and this row is considered, it look like similar and we will tell it as A type. These two rows are of same type, that is A, and this row and this row are similar and we will tell it as B type. These are B type rows. So it is
different from the previous one, because in previous one the all rows which are placed are all of same type, so we called as AA type arrangement. But in this case the first row doesn't resembles the second one, and again the third row resembles the first one, the fourth row resembles the second one. So first is A, second is B, then again third one A and fourth one is B. So this type of arrangement is AB type arrangement. तो क्या हो रहा है इस अरेंजमेंट में, हमें यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हमने सेकेंड रो को प्लेस किया है, सेकेंड रो को किस तरह से प्लेस किया गया है कि वो जो फर्स्ट रो में जो भी स्फीयर्स पार्टिकल रखे गए हैं उनके बीच में जो भी गड्ढे हैं, डिप्रेशन है, उसमें उसको फिट कर दिया गया है। ये फर्स्ट रो के स्फीयर्स हैं, तो इनके बीच में ये जो गैप था, गड्ढा था, उस गैप में सेकेंड रो के इस स्फीयर को फिट कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर भी जो स्फीयर्स हैं उसमें यहाँ पे जो बीच में गैप डिप्रेशंस बना गया है उसमें इसको फिट कर दिया जा रहा है। तो इट मीन्स कि सेकेंड रो और फर्स्ट रो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे, वो दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट में है। तो इसलिए अगर फर्स्ट रो को हम ए टाइप कहते हैं तो सेकेंड रो बी टाइप कहलाएगा। बट अगेन जब थर्ड रो पे आएंगे तो वो फर्स्ट रो जैसा ही होगा, तो इसलिए अगेन उसको ए टाइप कहेंगे। बट द फोर्थ वन इज लाइक द सेकेंड रो, इसलिए उसको हमने बी टाइप कह दिया। तो इसलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे कि ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में आते हैं, किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं। तो अगर हमने इस पार्टिकल को कंसिडर करना है तो इस पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो जो पार्टिकल है वो कौन कौन है। इस पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो जो पार्टिकल आ रहे हैं वो ये है, ये 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 और ये पार्टिकल वो हैं जो इसके डायरेक्ट नेबर्स हैं, ठीक है। और अगर काउंट करें तो कितने डायरेक्ट नेबर्स होते हैं, दो, 4, 5 और 6 डायरेक्ट इसके नेबर्स होंगे। तो इन केस में नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल टू 6 नेबर्स हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6 है। यानी फॉर ईच ऑफ द स्फीयर इन दिस अरेंजमेंट द नंबर ऑफ स्फीयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी भी एक स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी स्फीयर्स आ रहे हैं वो कितने होंगे, 6, एंड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज 6, एंड if we will again join the centers of these spheres, joining the centers, what we would get over here, a hexagon. After joining the centers of all the neighboring sphere we will get a hexagon. So this is hexagonal close packing. This packing is hexagonal close packing, and the previous one is square close packing. So in the case of two dimensional close packing we will get two sets. One is square close packing which look like this one, in which all the rows are similar and the coordination number is 4, and the second one is hexagonal close packing in which the first row and second row are dissimilar. Again the third row resembles the first one and the fourth row resembles the second one, and in this case the coordination number is 6, and this is hexagonal close packing. So till here we have discussed about the two-dimensional close packing. Now moving towards the three-dimensional close packing. Now we are going towards the three-dimensional close packing. For this we have to be little attentive because in this arrangement we are going toward the main structure or the real structure of the crystal. All those solid which we see around us actually in three-dimensional manner. So we can say that all the real structure of the solids, जितने भी हमें सॉलिड आसपास देखने को मिलते हैं उन सभी के जो रियल स्ट्रक्चर होंगे वो रियल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो all the real structure are three dimensional structure. So while discussing about this three dimensional structure we had gone through the one dimensional, two dimensional, and now finally it's time to discuss about the three dimensional structure. One dimensional structure में क्या था कि एक पार्टिकल को उसके एडजेसेंट कई सारे सिमिलर पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया गया था रो वाइज. यहाँ रो वाइज पार्टिकल को एक के एडजेसेंट एक रख दिया गया था. तो ये एक ही डायमेंशन में अरेंज है ना, इसमें वन ही डायमेंशन प्रेजेंट है, तो ये वन डायमेंशन अरेंजमेंट हो गया. अब इस तरह के
पार्टिकल्स को हमने जब अरेंज किया एक डायमेंशन में, तो उसके बाद उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या था कि इसी रोज को एकदम सिमिलर पैटर्न में एक के बिलो एक प्लेस कर दिया जाए। इस तरह से एक के नीचे एक रख दिया गया, तो यहाँ 2 डायमेंशन आ गया, एक डायमेंशन इधर है और एक डायमेंशन इधर है, यानी लेंथ वाइज भी और ब्रेथ वाइज भी इसमें अरेंज है, तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गई। अब इस 2 डायमेंशनल पैकिंग के 2 केस हैं, एक केस तो ये रहा और एक केस ये कि हमने एक रो बनाया पार्टिकल को एक के एडजेसेंट एक रखकर, और जब दूसरा रो बना रहे हैं तो जो 2 पार्टिकल्स ऊपर वाले रो में हमने रखे थे उसके बीच में जो यहाँ डिप्रेशन है उसमें हम लोग नेक्स्ट रो के पार्टिकल को डालेंगे। वैसे ही इन 2 पार्टिकल के बीच में जो डिप्रेशन यहाँ क्रिएट किए गए हैं उसमें हम लोग नेक्स्ट रो के पार्टिकल को डालते जा रहे हैं। तो ये एक अरेंजमेंट का तरीका हो गया। बट द थर्ड रो जो क्रिएट होगा वो पहले रो जैसा ही बन जाएगा, फर्स्ट रो जैसा ही अपीयर होगा। तो ये भी जो अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, ये अरेंजमेंट भी कैसा है, ये भी 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट के 2 केस हैं, एक दिस टाइप एक दिस टाइप। इसका नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड दिस वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब इस 2 डायमेंशन से हम लोग बढ़ेंगे 3 डायमेंशन की तरफ, 3 डायमेंशनल पैकिंग में, क्योंकि 3 डायमेंशनल पैकिंग ही एक्चुअली में रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे अगर इस स्ट्रक्चर से हम 3 डायमेंशनल पैकिंग की तरफ जाएंगे, इस पहले हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरफ आते हैं। तो ये एक हमने 2 डायमेंशनल लेयर क्रिएट किया है, ये एक 2 डायमेंशनल लेयर है जो यहाँ क्रिएट किया गया। अब आगे जो करना है वो ये है कि सेम ऐसा ही एक और लेयर लेना है और इस लेयर को इसके जस्ट अबव प्लेस कर देंगे। मतलब इस लेयर को जो नेक्स्ट लेयर बनेगा वो इसके ऊपर जस्ट प्लेस होगा। अगेन एक तीसरा चौथा, मतलब एक के ऊपर पाइल जैसा, जैसे हम लोग बुक्स के पाइल बनाते हैं, थाक लगाते हैं, एक के ऊपर एक जस्ट प्लेस कर देना है सिमिलर वे में। तो ये जो पैकिंग हमें नजर आएगी, ये जो पैकिंग दिखेगी, इस पैकिंग में जो पहला लेयर है सेम वैसे ही सारे लेयर्स अपीयर होंगे। तो इसलिए ये सब के सारे लेयर्स आपस में आइडेंटिकल होंगे। इसको हम लोग अगर 3 डायमेंशनल मैनर में ऑब्जर्व करें तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होगा। तो ये जो हम डायग्राम यहाँ शो करके देख रहे हैं, ये इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक लेयर को जस्ट हमने उसके जस्ट पीछे वैसे ही एक लेयर रखा है और फिर उसके पीछे एक और वैसे ही एक लेयर पुट किया है। तो अगर एक 2 डायमेंशनल क्लोजली पैक्ड लेयर के एक के बिलो एक एकदम एडजेसेंट सेम वैसे ही लेयर को 1 बाय 1 प्लेस कर दिया जाए तो हमारे सामने एक 3 डायमेंशनल पैकिंग नजर आएगी। और वो 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है वो है सिंपल क्यूबिक लैटिस कहलाएगी। तो ये जो 3 डायमेंशनल पैकिंग हमें दिख रही है ये क्या है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है। और इस सिंपल क्यूबिक लैटिस को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की गई जिसमें पार्टिकल को एक के एडजेसेंट एक रखा गया रो वाइज। फिर उसके बाद सेम वैसे ही एक और रो उसकी जस्ट नीचे प्लेस किया गया, फिर उसके जस्ट नीचे इस तरीके से 2 डायमेंशनल पैकिंग हुई। और जब एक 2 डायमेंशनल लेयर क्रिएट हो गया तो वैसे कई सारे लेयर वन बिलो द अनदर प्लेस कर हम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की ओर आ गए एंड इट लुक्स समवट लाइक दिस एंड इट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक लैटिस। एंड सिंस इन दिस अरेंजमेंट ऑल द layers are similar, if we consider the first layer as A type, the second layer will also be A type and third and fourth and so on, and this is known as AA type arrangement. Again this is AA type arrangement. This arrangement is AA type arrangement. And in this arrangement if we consider any one of the particle, if we take any one of the particle and we will see its neighboring particles. So in this situation, in this case, for any of the particle, its neighboring particle when attached leads to the formation of simple क्यूबिक लैटिस। ये सिंपल क्यूबिक लैटिस के सिचुएशन में अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं और फिर उसके सारे नेबरिंग पार्टिकल को आपस में कनेक्ट करें तो हमें एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होते हुए मिलेगा। इस पूरे सिचुएशन में एक यूनिट
इस पूरे सिचुएशन में इस प्रकार से एक यूनिट सेल को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कैसा होगा, यूनिट cell over here is of primitive cubic unit cell. Now once again we are going to review all this what we have seen. We are discussing the real structure over here, and in the real structure we are going towards the three-dimensional structure through one dimension and two dimensional. Real structure is the three-dimensional structure. All the crystalline solid which we see around us are three-dimensional, and for going towards that three-dimensional structure we have to follow certain steps. The first one is arrangement of particle in one dimension, which is shown over here, and when this one dimensional arrangement is converted into two-dimensional arrangement, it goes through the two case. One is of this type, in which the second row, third row, fourth row, all the rows resembles the first one, all are similar type. This is known as square close packing. And the second case is in the first row and the second row is dissimilar one. Again the third row which resemble itself like the first one, and the second one and fourth one would be of same type. This is hexagonal close packing. Now after this close packing in two dimensional, we will go towards the three dimensional packing, and this diagram we can clearly see that the layers are placed, and the first layer is two dimensional layer of square close packing. तो उसी तरीके से जो सेकंड लेयर है वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग को रिजेंबल करेंगे, थर्ड लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इस तरह से कई सारे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के टू डायमेंशनल लेयर को एक के एडजेसेंट एक रखा गया है, और इससे हमें एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। और ये सारे क्योंकि सिमिलर लेयर से बने इसलिए इसे हम ए टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। और फाइनली अगर इस अरेंजमेंट की अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो इस अरेंजमेंट में जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल किस टाइप का है, तो वह प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये और अरेंजमेंट जो थ्री डायमेंशनली क्रिएट किया गया है, इसमें स्क्वायर पैक्ड क्लोज लेयर का हमने यूज किया, और इसलिए इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस, और इसमें सारे अरेंजमेंट में जो लेयर्स इस्तेमाल हुए सब एक जैसे, इसलिए इसको ए टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। और इसके यूनिट सेल कैसे थे, तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बट ये थ्री डायमेंशनल लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से भी तैयार किया जा सकता है। तो अगेन moving towards the second type of three-dimensional packing, and that is with the help of hexagonal packed layers. Three-dimensional close packing, so with the help of hexagonal close packed layers. सबसे पहले यहाँ पर हमें एक टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर तैयार करना है। तो इस तरीके से स्फीयर वन एडजेसेंट टू अनदर यहाँ प्लेस करेंगे। पहले जो रो है उनमें जो स्फीयर प्लेस किए गए हैं उनमें जो डिप्रेशंस है उस डिप्रेशंस में हमें सेकेंड लेयर के स्फीयर को फिट करना है। अब फर्स्ट रो में जो भी स्फीयर सेट किए गए हैं वो सेकेंड रो से डिफरेंट है, तो इसलिए अगर फर्स्ट रो को ए टाइप नाम देंगे तो सेकेंड जो रो है उसे बी टाइप कहेंगे। इन सेम मैनर जब हम तीसरा रो फॉर्म करने जाते हैं तो थर्ड रो रिजेंबल्स जस्ट लाइक एज द फर्स्ट वन, एंड सो वी will again call this row as A type, and finally the fourth row is going to be placed in such a manner that it will occupy the gap
between the spheres of the third row. All the sphere which we will place over here is occupying the depressions of the sphere placed in the third row. So this is the hexagonal close packing. अब ये जो एक लेयर तैयार किया गया, अब हम लोग को 3 डायमेंशनल पैकिंग की तरफ जाना है, तो इसी जैसा एक और लेयर तैयार करेंगे और इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अब इसके ऊपर जो हम नेक्स्ट लेयर प्लेस करने जा रहे हैं उसमें प्लेसमेंट कैसे होगा, तो ये जो यहाँ पर पहले वाले लेयर में जो जो गैप क्रिएट हुए हैं, ये जो गैप्स यहाँ दिख रहे हैं, जो डिप्रेशंस यहाँ अवेलेबल हैं, उन गैप के ऊपर स्फीयर प्लेस होगा सेकेंड लेयर का। ये जो यहाँ पे गैप ऑब्जर्व हो रहा है, ये सारे गैप के ऊपर सेकेंड लेयर के स्फीयर प्लेस करेंगे। यानी एक स्फीयर यहाँ आएगा, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, एक स्फीयर इस पोजीशन पे, इस तरीके से एक स्फीयर यहाँ यहाँ। तो जहां जहां भी हमें क्या नजर आ रहे हैं, डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं पहले लेयर में, उसी डिप्रेशन को कवर करते हुए हम लोग सेकेंड लेयर क्रिएट करेंगे। तो ऑब्वियस है कि जो सेकेंड लेयर बनेगा वो पहले लेयर जैसा रिजेंबल नहीं करेगा। तो अगर ये जो पहला वाला लेयर बना रखा है नीचे में, उस लेयर को अगर ए टाइप कहेंगे तो उसके ऊपर जो लेयर प्लेस होगा वो लेयर बी टाइप होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लेयर को दूसरे के ऊपर प्लेस किया और प्लेस करते वक्त ये ध्यान रखा कि जो फर्स्ट लेयर क्रिएट किया गया है उनमें जो भी डिप्रेशंस हैं, उन डिप्रेशंस को कवर करते हुए हमें स्फीयर्स में सेट करने हैं। और दोनों लेयर क्योंकि एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर अगर ए टाइप होंगे तो सेकेंड लेयर जो होगी वो बी टाइप लेयर होंगे। तो एक बार फिर से इस बात को हम लोग रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो सेकेंड लेयर हमने क्रिएट किया, उस सेकेंड लेयर के स्फीयर को किस तरह से प्लेस किया गया। तो जो फर्स्ट लेयर में जो डिप्रेशंस दिख रहे थे, उन डिप्रेशंस को फिल करते हुए हमने सेकेंड लेयर के स्फीयर को इस तरह से प्लेस किया यहाँ पर। अब जो फर्स्ट लेयर में जो डिप्रेशंस थे, वो जो गैप क्रिएट हुए थे, जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुए थे, उस डिप्रेशंस को, उस गैप को, उस एम्प्टी स्पेस को हम एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज नोन एज वॉइड। void, तो what is this void? void are the empty spaces। जब पार्टिकल्स को एक दूसरे के एडजेसेंट रखकर हम एक क्लोज पैक्ड लेयर तैयार करने जा रहे हैं, तो उस पैकिंग के दौरान जो भी एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगे, दैट स्पेस आर नोन एज void। सो व्हेन द फर्स्ट लेयर वाज क्रिएटेड, सबसे फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट लेयर में जो भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुए थे, वो एम्प्टी स्पेस शेप में ट्रायंगुलर थे। सो द वॉइड इज नोन एज द ट्रायंगुलर वॉइड। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते टाइम जो एक लेयर क्रिएट हुआ था, उस लेयर में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जहां जहां पर एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस यानी डिप्रेशंस वो ट्रायंगुलर इन शेप हैं। तो इसलिए हम लोग उस एम्प्टी स्पेस को नाम देंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब हम लोग जब 3 डायमेंशनल पैकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या किया गया कि जो सेकेंड लेयर प्लेस कर रहे हैं, उस सेकेंड लेयर में जो भी स्फीयर रखेंगे वो उन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर रखते जाएंगे। लेकिन इस सेकेंड लेयर को बनाते वक्त सारे के सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स जो होते हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं। ऑल ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स आर नॉट टोटली कवर्ड विद द स्फीयर इन द सेकेंड लेयर। सो two situation arises again. And what are the two situation? The first one is if the place where the triangular voids are occupied by the sphere of the second layer। अगर ऐसा होता है कि ट्रायंगुलर वॉइड जो है, जो फर्स्ट लेयर में थे, उसको सेकेंड लेयर के स्फीयर ने ऑक्युपाई कर लिया, तो वैसे सिचुएशन में हमें वहां पर एक नए तरह का वॉइड क्रिएट होकर मिलेगा और उसे हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से वो होगा कि नीचे वाले जो लेयर थे उसके ये 3 स्फीयर्स कुछ इस तरह से अरेंज थे। ये हमने सबसे बॉटम लेयर के 3 स्फीयर को यहाँ शो किया।
तो उस तीनों स्फीयर ने यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया था जो ट्रायंगुलर शेप में अपीयर हो रहा था, और उसको हम लोगों ने नाम दे दिया ट्रायंगुलर वॉइड। अब सेकेंड लेयर का एक स्फीयर आकर इसके ऊपर प्लेस हो रहा, रखा रहा है। तो जैसे ही इस पर सेकेंड लेयर का स्फीयर आकर के प्लेस होगा, तो ये सेकेंड लेयर का स्फीयर इस पे आकर प्लेस कर दिया गया, तो फिर बीच में जो वो स्पेस बन रहा है, वो बीच की जो एम्प्टी स्पेस है, वो शेप में टेट्राहेड्रॉन होगा। तो इसलिए जब सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंड लेयर के फॉर्मेशन के टाइम अगर ऐसा किया जाए कि वो जो सेकेंड लेयर के स्फीयर हैं वो ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर प्लेस हो जाएं, तो फिर एक नए तरह के वॉइड फॉर्म होंगे, एंड दैट वन इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर वो टेट्राहेड्रल वॉइड को यहाँ पर हमने शो कर रखा है, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से होगा। जितने भी स्फीयर हैं उन सभी के सेंटर्स को, सारे स्फीयर के सेंटर को अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो वो एक टेट्राहेड्रल शेप हमें देगा। यानी कि वो तीन स्फीयर जो नीचे वाले लेयर का है, और वो एक स्फीयर जो ऊपर वाले लेयर में रखाया था, उन सारे स्फीयर के सेंटर को हमें कनेक्ट करना है, तो वो एक टेट्राहेड्रॉन शेप में अपीयर होगा, इसलिए वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब सेकेंड लेयर हम लोग यहाँ प्लेस कर रहे थे, तो पूरे के पूरे जो ट्रायंगुलर वॉइड्स थे वो कवर नहीं हो पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट लेयर में जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली सेकेंड लेयर कवर कर लेता है। कुछ ना कुछ ऐसे वॉइड हैं जो रह जाते हैं, जो स्फीयर द्वारा कवर नहीं हो पाते हैं। तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या होता है, फिर वैसे सिचुएशन में एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड आ जाता है। यानी जहां जहां पर ट्रायंगुलर वॉइड को स्फीयर ने ढक लिया, कवर कर लिया, तो उस सिचुएशन में टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। बट अगर ऐसा होता है कि स्फीयर जो है वो ट्रायंगुलर वॉइड पे नहीं रखाया, बल्कि सेकेंड लेयर के जो वॉइड थे, सेकेंड लेयर में भी तो ट्रायंगुलर शेप का वॉइड बनेगा, तो सेकेंड लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है, अगर वो फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर आ जाए, तो फिर ऑक्टाहेड्रल शेप्ड वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो द नेक्स्ट केस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये कैसे बना? तो it is formed when the triangular void of the first layer lies above the triangular void of the second layer. When triangular void of first layer and second layer is one above another. तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने दो लेयर ही प्लेस किया है, तो इसने बात यहाँ पर अराइज होते हैं। थर्ड लेयर प्लेस करने से पहले हमें इसे रिकॉल करना है कि क्या क्या हमने यहाँ पे देखा। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे सिंपल केस तब अराइज हुआ था जब हमने बस एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को वन अबव द अनदर प्लेस किया। तो पहला लेयर स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, दूसरा लेयर भी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, और इस तरह से कई सारे लेयर हम एक के अबव एक रखेंगे और एक ही जैसे अरेंजमेंट नजर आएंगे, इसलिए हम उसे ए टाइप अरेंजमेंट का नाम देंगे। और उस सिचुएशन में जो वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे सामने अराइज होगा उसे हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस का नाम देते हैं, और उसमें जो एक यूनिट सेल होगा वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगा। नाउ